Good evening everybody. About a very important aspect of our human body, that is managing our blood sugar levels. Now the session today is planned ताकि हम ये समझ सकें कि हमारे ब्लड शुगर लेवल्स क्या होते हैं और वो किस तरीके से हम उनको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। आज का जो सेशन होगा उसके दो मेन पार्ट्स रहेंगे। आज हम बात करेंगे एक बेसिक्स के बारे में, फंडामेंटल्स जो हैं कि डायबिटीज होता क्या है, जो हाई ब्लड शुगर लेवल्स को हम एक बीमारी का नाम है डायबिटीज, उसको क्या मतलब है, क्यों होता है। We will also be talking about understanding blood sugar levels, किस लेवल को हाई माना जाता है, किसको वेरी हाई माना जाता है, किसको नॉर्मल रेंज में माना जाता है। We would be talking about the different types of diabetes, common symptoms क्या रहते हैं और इसका इम्पैक्ट हमारे ह्यूमन लाइफ पे क्या पड़ता है। और ओवरऑल डायबिटिक वर्ल्ड के हिसाब से अगर हम बात करें तो इस समय हमारे पूरे वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है डायबिटीज। इनफैक्ट इफ आई हैव टू जस्ट सिंपली से इस पैंडेमिक जो हम आज गुजर रहे हैं, जिससे उससे बड़ा एक पैंडेमिक है इन द फॉर्म ऑफ डायबिटीज, एंड दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट टुडे। The other aspect or the second half of the session is where we will be talking about कि हम इसको मैनेज कैसे करें। ये जो ब्लड शुगर लेवल्स मैनेजमेंट है, इसमें एक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की हम बात करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे कि डाइट मैनेजमेंट क्या क्या है, हमारे फिजिकल एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए, स्लीप पैटर्न क्या होना चाहिए, स्ट्रेस लेवल्स क्या होने चाहिए हमारे, कैसे हम उनको बेटर मैनेज कर सकते हैं। बिकॉज शुगर लीड्स टू स्ट्रेस लेवल्स एंड स्ट्रेस लेवल्स लीड टू हाई शुगर लेवल्स। तो ये हैंड इन हैंड जाते हैं। साथ में देयर इज मेडिकेशन दैट इज इन्वॉल्व, जो आप ऑलरेडी ले रहे हैं या आपको लेनी चाहिए। ऑल्सो मॉनिटरिंग कैसे करनी है इसको रेगुलरली, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज क्या सप्लीमेंटेशन हम ले सकते हैं अपने ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करने के लिए। वी विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज डायबिटीज। इसको समझना जरूरी है कि हमारे बॉडी के अंदर जब हम कहते हैं कि ब्लड शुगर लेवल्स हाई जा रहे हैं या डायबिटिक है कोई, वो उसका क्या मतलब है, हमारे बॉडी में ऐसा क्या हो रहा है दैट इज लीडिंग टू इट। टू बेटर अंडरस्टैंड इट, एक छोटा सा वीडियो है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी, जो हमें एक्सप्लेन करता है कि जो भी हम खाना खाते हैं और जो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है उससे हमें एनर्जी मिलती है, उसके बीच में ये डायबिटीज की प्रॉब्लम कैसे और क्यों आ जाती है। In this film, we're going to explain how your body processes the food you eat in order to provide all your body cells with the energy they need. And also what happens when you have diabetes and this system doesn't work properly. When you eat food that contains carbohydrate, it's broken down in the stomach and digestive system into glucose, which is a type of sugar. We need glucose from food because that's what gives us energy. Carbohydrate containing foods are things like starchy foods, sugary foods, milk and some dairy products, and fruit. This glucose then moves into the bloodstream and the body detects that the blood glucose level is rising. In response to that, the pancreas, which is a little gland that sits just underneath the stomach, starts to release a hormone called insulin. And it's insulin that helps our body get the energy from the food we eat. The bloodstream then takes the glucose and the insulin to every cell in our body that needs it. To make this easier to understand, let's look at muscle cells. At the muscle cells, it's insulin that allows the glucose to get into the cells where it can be used for energy. It's a bit like insulin is a key unlocking the door to the cells so the glucose can get in. That way, the blood glucose level starts to drop. But the blood glucose level can be topped up at any point by the liver releasing extra glucose that it has stored. The blood glucose rises again, and again the pancreas produces more insulin to move with that glucose through the bloodstream to the muscle cells, open the doors and let the glucose in. The body functions best with the blood glucose at an optimum level. It doesn't like it if the blood glucose rises too high. Normally, there's a cycle within the body which balances out the glucose and the insulin level, and this is achieved by the food you eat, the pancreas and the liver. However, in some people, the system doesn't work properly and they develop diabetes. There are two main types of diabetes, type 1 and type 2.
In type 1 diabetes, the body isn't making any insulin at all. This is because of an autoimmune response whereby the body has destroyed the insulin producing cells in the pancreas. We don't entirely know why that happens in some people and not in others. Type 1 diabetes accounts for about 10% of all cases. It's most often found in the under 40s, and it's by far the most common type of diabetes found in childhood. In type 1 diabetes, the carbohydrate containing food is broken down into glucose as normal. That glucose then moves into the bloodstream. Normally, the body would produce insulin to let that glucose into the cells. But in type 1 diabetes, there is no insulin being produced, so the glucose can't get into the body cells at all. So the level of glucose in the blood rises and rises. Type 2 diabetes accounts for about 90% of all cases in the population. It's most common in the over 40 age group in the white population and in the over 25 age group in the South Asian population. Type 2 diabetes is a little more complex because there's slightly more processes at work. Either the body isn't producing quite enough insulin, or the insulin it is producing isn't working properly. That can be due to being overweight because a build-up of fat can stop insulin doing its job properly, but it can also happen in people of a healthy weight. So in type 2 diabetes, the carbohydrate containing food is broken down into glucose in the stomach and digestive system as normal. That glucose then moves into the bloodstream. The pancreas starts to produce insulin, which moves with the glucose through the bloodstream to all the body cells which need glucose for energy. However, the glucose can't always get into the cells because the locks to the cell doors have become furred up with fat deposits. That means that the insulin can't open the cell doors properly. So the level of glucose in the blood continues to rise. In response to this, the pancreas produces even more insulin. So the blood glucose levels continue to rise and the insulin levels continue to rise. This situation is further complicated by the cells, which are desperate for energy, sending out emergency signals to the liver to release stored glucose. The blood glucose level goes up and up, and the pancreas produces more and more insulin until it can't cope anymore, and eventually it can wear out. As with type 1 diabetes, the symptoms of type 2 diabetes are going to the toilet a lot, thirst, thrush or genital itching, slow healing of wounds, blurred vision, tiredness and weight loss in some people. The symptoms for type 2 diabetes come along very slowly, and some people don't have any symptoms at all. So for that reason, people can live with type 2 diabetes for up to 10 years before they realise that they have it. Type 2 diabetes can be treated in a number of different ways. Initially, it may be sufficient to make changes to the food you're eating and to take extra physical activity or lose any weight that may be appropriate. But type 2 diabetes is a progressive condition and most people will need some form of medication to treat it. So now that we've understood looking at this video कि हमारे बॉडी के अंदर क्या मेटाबॉलिज्म चेंजेस लेके आते हैं डायबिटीज, इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम इसको कैसे मॉनिटर करते हैं. आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स को डिफरेंट टाइमिंग्स के हिसाब से मॉनिटर करते हैं और उनके शुगर लेवल्स भी अलग अलग होते हैं. सो वी विल लुक एट 4 प्राइमरी टाइम जिस टेन्योर में या टाइम पे जिस पे हम इस ब्लड शुगर लेवल्स को चेक कर सकते हैं. तो सबसे पहला और वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज कॉल्ड द फास्टिंग. ब्लड शुगर फास्टिंग लेवल्स मतलब ये है कि आपने 8 से 10 घंटे की फास्टिंग की है. सो टिपिकली आपने अगर 10 बजे डिनर किया है तो आप अगले दिन सुबह 6-7 बजे के बाद अगर अपना ब्लड शुगर लेवल्स चेक करते हैं तो क्या ब्लड शुगर लेवल्स आ रहे हैं वो डिसाइड करता है कि आपके ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग लेवल्स क्या है. नाउ ऑन अ नॉर्मल रेंज एनीथिंग अप टिल 100 ऑफ द टेस्टिंग. ये टेस्टिंग सिंपल आप घर पे भी कर सकते हैं या किसी डायग्नोस्टिक कंपनी की हेल्प ले सकते हैं. आज की डेट में इफ यू हैव एनीबडी इन द फैमिली हु इज ऑलरेडी
सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज या फ्लक्चुएटिंग ब्लड शुगर लेवल्स या फैमिली हिस्ट्री में हैं, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट, नॉट इवन अप टू अवर 1000 रुपीज टुडे, आपको एक अच्छा ब्लड शुगर ग्लूकोज मॉनिटर आप घर पे रख सकते हैं। सिंपल टू यूज सिंगल प्रिक ये मॉनिटर्स अवेलेबल होते हैं। सो इससे आप ये टेस्ट कर सकते हैं। सो अगर आपने 8-10 घंटे के बाद फास्टिंग के बाद आपने फास्टिंग डज मीन्स चाय कॉफी भी नहीं ली है, सिर्फ पानी पी सकते हैं आप। तो इसके बाद जब आप अपना ब्लड शुगर लेवल्स चेक करते हैं और वो 100 के रेंज में आता है, 100 से अंदर आता है, दैट इज एन एब्सोल्युटली नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स। इट शुड बी डेफिनेटली बी अबव द रेंज ऑफ 70-75। 70-75 से नीचे का ब्लड शुगर लेवल्स मीन योर शुगर लेवल्स आर वेरी लो। नाउ कमिंग ऑन टू 100 से ऊपर। नाउ 100 से ऊपर जब हम इस ग्राफ में देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट टिल अबाउट 120 तक इट इज स्टिल समथिंग विच इज सेइंग कि हमारा ग्लूकोज लेवल्स थोड़े से हाई हैं एंड वी नीड टू टेक केयर। इस रेंज में अगर आपका रेगुलरली ब्लड शुगर आ रहे हैं तो इट इज ऑल्सो नोन एज अ प्री डायबिटिक स्टेज। दैट मीन्स कभी कभी आपके ब्लड शुगर लेवल्स डिजायरेबल से ज्यादा रेंज में चल रहे हैं। एंड बाय चांस अगर आपका ब्लड शुगर लेवल्स 120-125 से ऊपर आता है फास्टिंग के अंदर, दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। दिस इज द थिंग जिसमें आपने अपने अब लाइफस्टाइल चेंजेस कर लेने चाहिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए एंड यू नीड टू टेक प्रिकॉशंस टू इंश्योर कि आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स को बेटर मेंटेन करें। Now the second way of understanding my blood sugar levels is after I've eaten food. So immediately आपने खाना खत्म किया, उसके थोड़ी देर में विद इन फ्यू मिनट्स ही आपने ब्लड शुगर चेक किया। तो जैसे वीडियो में आपको दिखाया कि हमारे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो स्टमक में जाते ही मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। Now, जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो हमारी बॉडी के अंदर वो ब्लड शुगर लेवल्स घूम रहे होते हैं एंड वी नीड टू टेस्ट कि हमारा उस टाइम पे क्या ब्लड शुगर लेवल्स हैं, कितना ग्लूकोज बॉडी में कन्वर्ट हुआ है और कितना ब्लड में घूम रहा है इंसुलिन के टच में आने से पहले। दैट इज द वन वे वी सी इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग। यहाँ अप टू 180 तक इज समथिंग विच इज एब्सोल्युटली फाइन, नॉर्मल रेंज में आ जाता है। इसको रैंडम शुगर लेवल्स भी बोला जाता है। Anything above that, anything above 180 going up to 220, 230 तक, we are saying sugar levels high हैं, but we could do something about it. अगर आपके 200-230 से ऊपर जा रही है ब्लड शुगर लेवल, इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। ये सिंपल इंडिकेशन है कि आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म में उतना इंसुलिन नहीं बन रहा है कि हम वो सारी शुगर को यूटिलाइज कर सके, सारी ग्लूकोज को यूटिलाइज कर सके। थर्ड स्टेज, अनदर विच इज ऑल्सो वेरी कॉमनली यूज्ड वे ऑफ मॉनिटरिंग शुगर लेवल्स इज आफ्टर 2 to 3 hours ऑफ आर ईटिंग। मतलब टिपिकली जो भी हम खाना खाते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि 2 से 3 घंटे के अंदर हमारा वो जो खाना है वो हमारा डाइजेस्ट हो चुका होगा। मतलब स्टमक को सरपास करके इंटेस्टाइन्स में पहुंच के हमारा खाना डाइजेस्ट हो चुका है। Now this is the time when my blood sugar levels should start coming down because जो शुगर हमारे खाने में से ग्लूकोज के फॉर्म में ब्लड में गई थी, इंसुलिन के टच में आके वो इस टाइम तक हमारे ब्लड सेल्स के अंदर जा चुकी होनी चाहिए और एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होनी चाहिए। अगर उसके बावजूद भी हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल्स के कंटेंट हाई है, दिस इज अ सिंपल इंडिकेशन कि हमारे या तो इंसुलिन प्रॉपर नहीं हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है या शुगर लेवल्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं इंसुलिन से। सो हियर इज वेयर वी नीड टू टेक केयर एंड मॉनिटर आवर ब्लड शुगर लेवल। यहाँ पे ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल की रेंज गोज अप टू 140 लेवल्स तक, एब्सोल्युटली नॉर्मल, क्योंकि उस समय हम मान के चल रहे हैं कि जो हमने खाना खाया है बॉडी ने सक्सेसफुली उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया है। नाउ मूविंग अहेड, अगर इसका रेंज 150-160 तक भी जाता है तो वी नीड टू बी लिटिल केयरफुल। दैट मीन्स हमारा ब्लड शुगर लेवल ज्यादा कन्वर्ट हो रहा है। 160 से ज्यादा इज वेयर वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। वी आर टॉकिंग अबाउट अ डायबिटिक और अ प्री डायबिटिक स्टेज, जहां पे आपका ब्लड शुगर लेवल जितना आपकी बॉडी नॉर्मली इंसुलिन पैदा कर सकती है उससे ज्यादा है। सो वी आर सेइंग कि ऑलरेडी आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल्स का कंटेंट ज्यादा हो रहा है।
जैसे वीडियो ने शेयर किया, ये पॉसिबल इस वजह से भी हो सकता है कि एक तो आपके खाने में आपके पास शुगर का कंटेंट या ग्लूकोज का कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट ज्यादा है। द सेकेंड रीजन कुड बी अ मेटाबॉलिज्म रीजन ऑल्सो, जहां हमने देखा लिवर भी हमारा कुछ हद तक ग्लूकोज क्रिएट करता है उस खाने से जो हमने पहले खा रखा है, एंड दैट इज अ रीजन वेयर इमीडिएटली आपके शुगर लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं। स्ट्रेस की वजह से भी यही इंडिकेशन होता है। जब fourth, which is the most reliable form of blood sugar monitoring, which is something called HbA1c. ये एक डायग्नोस्टिक ब्लड टेस्ट है। देर आर सर्टन स्पेसिफिक मशीन्स जिनके साथ आप ये ब्लड टेस्ट किया जा सकता है। सम आर ऑल्सो अवेलेबल जो आप पोर्टेबल अपने घर पे भी रख सकते हैं। HbA1c किसी भी टाइम पे लिया जा सकता है, क्योंकि ये आपको उस टाइम का शुगर नहीं बताता है, ये एक स्कोरिंग देता है आपके लास्ट 3 मंथ्स के ब्लड शुगर लेवल्स की। ये एक एवरेजिंग करता है। दैट मीन्स कि जब आप फास्टिंग में थे तो ब्लड शुगर लेवल्स लो था, खाना खा के थोड़ा सा ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ा, और उसके बाद जब आपकी मेटाबॉलिज्म हो गई तो आपकी ब्लड शुगर लेवल्स फिर से वापस थोड़े कम की तरफ आ गए, बट एक ओवरऑल एवरेज में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। जब आप इसको एवरेज आउट करें तो एक स्कोरिंग ये देता है आपको। सो एक टिपिकल HbA1c जो ब्लड टेस्ट स्कोर है आपका, एनीथिंग बिलो 6 इज अ नॉर्मल रेंज, एनीथिंग अबाउट 4.8 से ऊपर होना चाहिए। इससे नीचे जा रहे हैं दैट मीन्स हमारे ब्लड शुगर लेवल जरूरत से ज्यादा डिप कर रहे हैं। 6.1 तक हम उसको बॉर्डर लाइन मानते हैं। एनीथिंग अबव दिस इज एन इंडिकेशन कि हमारे ब्लड शुगर लेवल्स कभी ना कभी पूरे दिन भर में, चाहे हमारा नाश्ता करते हुए या उससे पहले या लंच के टाइम या बाद में, कभी ना कभी वो बिल्कुल शूट अप कर रहे हैं। और ब्लड शुगर लेवल्स अबव द रेंज ऑफ 7 इंडिकेट कि आपका 250 से 300 से ज्यादा शुगर कभी ना कभी दिन भर में जाता है, और ये ओवरऑल एवरेज लेके चलता है ऑन द लास्ट 3 मंथ्स। सो इट इज नॉट कि मैंने आज गुलाब जामुन खाया तो मेरा HbA1c ज्यादा आएगा, आज गुलाब जामुन खाया तो फास्टिंग या पीपी है या जो इमीडिएट ब्लड शुगर वो हाई हो सकता है, एंड आप कह सकते हैं ये तो सारा गुलाब जामुन का खेल है। बट HbA1c के केस में हम एक ओवरऑल एवरेज ले रहे हैं पिछले 3 महीने की। सो दिस इज वन थिंग दैट वन हैज टू मॉनिटर, और इस मॉनिटरिंग की जरूरत है हमारे बॉडी को, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 35 से पहले साल में 1-2 बार आप अपना ब्लड शुगर लेवल्स मॉनिटर कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है या आपका लाइफस्टाइल ऐसा है। बट आफ्टर द एज ऑफ 35 हम रिकमेंड करते हैं कि एवरी 6 मंथ्स वन शुड मॉनिटर द ब्लड शुगर लेवल्स। ऑल्सो अगर आप किसी भी टाइम पे आपको डायग्नोस किया जाता है कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल रेंज से ज्यादा की तरफ हैं, तो फिर आप इस फ्रीक्वेंसी को 3 मंथ्स और आने वाले टाइम में आप इसको मंथली भी कर सकते हैं। जब डायबिटिक होते हैं तो हम कहते हैं कि एटलीस्ट वीकली वंस आप अपने आप सेल्फ मॉनिटरिंग में ब्लड शुगर, फास्टिंग या रैंडम शुगर जरूर चेक करा करें। नाउ मूविंग अहेड विल टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज। ये भी हमारे जो हमने वीडियो देखा उसमें हमें थोड़ा सा आइडिया उन्होंने दिया कि मेनली 2 टाइप के डायबिटीज होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 इज मोर टू डू विद अ मेटाबॉलिज्म, जो हमारे बेसिक डायग्नोस्टिक अगर तरीके से समझे तो हमारे बॉडी के अंदर पैंक्रियाज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, और ये एक फेस हमने देखा है कि ज्यादातर बच्चों के केस में पाया जाता है। इसको जुवेनाइल डायबिटीज भी बोला जाता है। जब पेरेंट्स में से किसी एक को टाइप 2 डायबिटीज है या दोनों को टाइप 2 या टाइप 1 डायबिटीज है, उस केस में बच्चों के केस में ये काफी कॉमन हो जाता है कि बच्चा जो है वो एक टाइप 1 डायबिटीज के साथ पैदा होता है। दैट मीन्स द पैंक्रियाज आर नॉट क्रिएटिंग इंसुलिन एट ऑल, और जैसे वीडियो में शेयर किया, हमारी बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंसुलिन टू मैनेज माई ब्लड शुगर लेवल। सो ये काफी सीरियस सिचुएशन हो जाती है। और बट अगर हम वर्ल्ड वाइड डायबिटीज के परसेंटेज को देखा जाए तो इस टाइप की डायबिटीज का परसेंटेज सिर्फ 10% है। मतलब अगर 10 डायबिटिक पेशेंट्स हैं उसमें से सिर्फ एक को टाइप 1 डायबिटिक है, और वो भी जुवेनाइल केसेस ज्यादा है।
इसके साथ साथ 10-12% का केस जेस्टेशनल डायबिटीज को बोला जाता है, जो एक लेडी के टाइम प्रेगनेंसी के दौरान बिकॉज मेटाबॉलिज्म रेट बॉडी में चेंज होता है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं उस टाइम पे, उसका ब्लड शुगर लेवल जरूरत से ज्यादा रहने लग जाता है। नेचुरली ऑल्सो द बॉडी नोज कि उस समय उसको एनर्जी ज्यादा की जरूरत होती है, एक बेबी की क्रिएशन हो रही होती है, तो वो शुगर अपने आप भी रिलीज कर रहा होता है। बट वी नीड टू बी केयरफुल कि वो नॉर्मल रेंज से ज्यादा में ना पहुंच जाए, एंड दैट इज कॉल्ड जेस्टेशनल डायबिटीज। एंड वो मोस्टली जितने भी हमारे गायनोकोलॉजिस्ट होती हैं और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, वो उसको इस तरीके से मैनेज करते हैं कि एक शॉर्ट टर्म लिव्ड डायबिटीज है, और वंस डिलीवरी हैपन्स और थोड़े टाइम बाद अगर ठीक से लाइफस्टाइल को मैनेज किया जाए और हार्मोन्स को मैनेज किया जाए, तो उस केस में वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाती है। द केस जिसके अंदर हम आज की डेट में सबसे ज्यादा वरिड हैं इज द रिमेनिंग 77%। कुछ अदर्स होती हैं, डिफरेंट स्पेसिफिक हेल्थ सिचुएशंस की वजह से डायबिटीज रिलीज हो जाती है, वो अदर्स का परसेंटेज इज वेरी स्मॉल। Actually, the large percentage is the type 2 diabetes. Now, type 2 diabetes is something जिसको हमने lifestyle related गिना है। यह हमारे lifestyle की वजह से हमारे body में आया है। Could be a side effect of certain medications also या certain treatments जो one has to undergo. But overall अगर देखा जाए हमारी overall lifestyle के ऊपर ये रिजल्ट करता है, और ये बहुत हद तक मैनेजेबल है। आई वोंट से इट इज क्योरेबल। किसी को टाइप 2 टाइप ऑफ डायबिटीज है, आई वुड हाईली रिकमेंड, प्लीज नेवर से कि वो बिल्कुल क्योर हो जाएगा। क्योरेबल नहीं है ये चीज, ये एक चैलेंज है। इस चैलेंज को हमने मेंटेन करना है, मैनेज करना है, और इसके साथ अपनी लाइफ को एक अच्छे क्वालिटी लाइफ को जीना है। तो उसको हम आज देखेंगे कि हम कैसे इस चीज को बेटर मैनेज कर सकते हैं। कॉमन सिम्टम्स, बाय चांस आप ऑलरेडी इनके बाद अवेयर नहीं हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपको अपना ब्लड शुगर लेवल्स चेक करने चाहिए। कुछ वेरी कॉमन सिम्टम्स हैं, नमनेस इन दी हैंड्स एंड फीट, टिकलिंग फीलिंग आती है, एक जैसे झंझनाहट जिसको कहते हैं, तो उस टाइप की फीलिंग पैरों में आना, हाथों में आना, दैट मीन्स ब्लड शुगर लेवल्स हमारे हाई जा रहे हैं। इसके अलावा वुंड्स, अगर कोई चोट लगती है और उसका हीलिंग प्रोसेस स्लो रहता है, दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन कि ब्लड शुगर लेवल्स हो सकता है ज्यादा है हमारे बॉडी के अंदर। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, डिजीनेस होना, अचानक से वेट गेन होना या वेट लॉस होना, दोनों ही अलग अलग तरीके से हमने सिम्टम्स देखे हुए हैं डायबिटीज के साथ साथ। इरिटेशन, हेडेक रहना, बिकॉज ब्लड फ्लो जब है हमारा ब्रेन में, अब आप ये सोच लीजिए पानी पतला है कि चाशनी गाढ़ी हो जाती है, पानी पतला होता है, तो हमारा जो ब्लड है वो वाटर है, 70% वाटर है, बट जब वो चाशनी बन जाए, ज्यादा उसके अंदर शुगर कंटेंट, ग्लूकोज कंटेंट ज्यादा रहेगा, तो ऑब्वियसली वो सर्कुलेशन में वो स्लो डाउन होगा, लीडिंग टू स्ट्रेस ऑन आवर हेड ऑल्सो। ब्रेन के अंदर स्ट्रेस बढ़ने का चांसेस बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से हेडेक होना, इरिटेशन होना, कंफ्यूजन रहना, ये कॉमन सिम्टम्स ब्रेन रिलेटेड भी हमने देखे हैं विद हाई शुगर लेवल्स। इसके साथ साथ ड्राई और इची स्किन रहती है, मॉइस्चर लेवल्स बॉडी के अंदर इस समय शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने की वजह से बॉडी लॉट ऑफ यूरिनेशन कर रहा होता है, लॉट ऑफ स्वेटिंग कर रहा होता है, उसकी वजह से जो स्किन के अंदर हाइड्रेशन होती है वो भी कम होने लग जाती है। ब्लरी विजन है, क्योंकि हमारी जो पतली पतली वेसल्स होती हैं आंखों की, और जब उनके थ्रू वो हाई ऑन शुगर लेवल ब्लड फ्लो करता है, तो उस टाइम पे वहां पे भी ब्लॉकेजेस और एक फिल्म सी बनने लग जाती है। इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर कैटरैक्ट एंड वेजर ग्लूकोमा इज हाई शुगर लेवल्स। सो जब हम आई साइट की बात करें, ह्यूज नंबर ऑफ जो सीनियर एज के अंदर हम ब्लाइंडनेस देखते हैं, उसका वन ऑफ द मेजर रीजंस इज हाई ब्लड शुगर लेवल्स, जो ग्लूकोमा में और कैटरेक्ट जैसी चैलेंजेस में और ब्लड वेसल्स आईज की एक्चुअली बस्ट भी कर जाती हैं, और बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं आई साइट को लेके। एक हंगर स्पैंक बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती है, तो उसको लगता है कि शायद हमने खाना ही नहीं खाया है, तो जल्दी जल्दी भूख लगना।
एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव अ सिचुएशन जहाँ बिल्कुल भूख नहीं लगती है, जब क्योंकि बॉडी को एक तरीके की फास्टिंग मोड में जाने की आदत पड़ जाती है। आप बहुत फटीग महसूस करते हैं, जिस तरीके से जब हम बीमार होते हैं और हमें कुछ खाने का दिल नहीं करता, तो बहुत बार हाई ब्लड शुगर लेवल्स के साथ साथ एपेटाइट भी बिल्कुल खत्म भी होने का सिचुएशन भी है, और बहुत ज्यादा एट टाइम्स भूख बढ़ने का भी सिचुएशन होता है। सो एक्सट्रीम्स हम देख रहे हैं इसके अंदर। थर्स्ट इज अ वेरी कॉमन सिम्टम जो हम देखते हैं, और स्पेशली लेट इवनिंग थर्स्ट, रात के टाइम पे सोते सोते हमें प्यास ज्यादा लगनी, बार बार रात को उठना। टिपिकली हमारी ह्यूमन बॉडी इस तरीके से डिजाइन है कि हम जब दिन होता है तो हम जागते हैं और रात होती है तो हम सोते हैं। जिस तरीके से पौधे हैं, जानवर हैं, उसी तरीके से हमें भी भगवान ने बनाया है कि हमें कुछ टाइमिंग के हिसाब से दिया हुआ है। सो टिपिकली ड्यूरिंग द डे अगर आप फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए जा रहे हैं, दैट इज ओके, आप पानी पी भी रहे हैं और यूरिनेशन के लिए, तो आपका डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। बट हमारा ह्यूमन बॉडी इस तरीके से डिजाइन होता है कि रात के टाइम वी आर सपोज टू स्लीप एंड वी आर नॉट सपोज टू गेट अप टू फॉर द एक्सक्रीशन प्रोसेस। अगर आपकी रात के टाइम नींद टूट रही है और आप वॉशरूम जा रहे हैं, ये क्लियर इंडिकेशन है कि बॉडी के अंदर सब कुछ नॉर्मल नहीं जा रहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके केस में ब्लड शुगर लेवल्स अपने चेक करें, अपनी स्लीप चेक करें, स्लीप टाइमिंग्स चेक करें, और बहुत सारे और कारण हो सकते हैं आपको रात को नींद टूट के आपको वॉशरूम जाने की अर्ज होने के लिए, राइट। ऑल्सो हाई ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर लेवल्स वी सी। ब्लड प्रेशर एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे हैंड इन हैंड सिचुएशन हम कहते हैं इन तीन चीजों की, हाई शुगर लेवल्स, हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट के ऊपर स्ट्रेन पड़ना। तीनों चीजें इसलिए हैंड इन हैंड कहते हैं क्योंकि ये किसी एक तरफ से आप अगर अपना जो ढील छोड़ेंगे तो वो बाकी दोनों के ऊपर भी इम्पैक्ट देता है। सो टिपिकली somebody who is high on blood sugar levels, who is diabetic, उसके चांसेस ऑफ हैविंग हाई ब्लड प्रेशर लेवल्स और हार्ट वीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड किसी का हार्ट वीक है तो वहां पे शुगर लेवल्स डिप या राइज होने के लिए उसमें भी वही सिचुएशन है। एंड ऑल्सो इन द सिचुएशन जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर बीपी हाई रहता है तो ऑटोमेटिकली बाकी सिचुएशन भी आ जाती है। सो दीज आर कॉमन सिम्टम्स एंड दीज आर इंडिकेशंस कि वी शुड टेक केयर ऑफ आवर ब्लड शुगर लेवल्स। नाउ अगर हम बात करें लाइफ की, तो हमारी जो ह्यूमन लाइफ है और लाइफ ओवरऑल के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालता है हाई ब्लड शुगर लेवल्स, उसको हम तीन एस्पेक्ट से देखते हैं। फिजिकली हमारी स्किन के रिलेटेड बहुत सारे चैलेंजेस आने लग जाते हैं। कॉमन स्किन रिलेटेड चैलेंजेस लाइक रैशेस होना, ड्राइनेस होना, स्किन के ऊपर अगर कोई इन्फेक्शन होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। बॉयल्स होना, वॉट्स होना, ये सब चीजें बढ़ जाती हैं अगर हमारे ब्लड शुगर लेवल्स हाई हैं। साथ में आई साइट का मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर लिया है, हमारे आंखों पे बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, हार्ट पे पड़ता है। अनदर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी जैसे हमने वीडियो में देखा है वो किडनी पे पड़ता है, बिकॉज किडनी हैड द रोल टू इंश्योर कि हमारे बॉडी के अंदर एक्सेस चीजें कुछ भी जो ब्लड में हो उसको बॉडी से बाहर निकाले। नाउ जब हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल्स हाई होते हैं तो किडनी पे स्ट्रेन पड़ने लग जाता है उस ग्लूकोज को लेवल को बॉडी से बाहर यूरिनेशन के फॉर्म में निकाले। और जब हमारे कॉन्स्टेंटली ओवर अ लॉन्ग फेज ऑफ टाइम अगर ऐसा रहता है तो किडनी में ये शुगर डिपॉजिट होके क्रिस्टल्स बनने लग जाते हैं और हमारे किडनीज के अंदर ब्लॉकेजेस और स्टोन्स होने लग जाते हैं, श्रिंकेज शुरू हो जाती है, डैमेज हो जाता है। ओवर यूज कर लिया आपने वो फिल्टर जो भगवान ने आपको दिया है अपने ब्लड को साफ रखने के लिए। साथ में अगर हम देखें नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती हैं, न्यूरो चैलेंजेस हमारे बढ़ने लग जाते हैं। तो एक तरीके का शॉर्ट सर्किट हमारे बॉडी में हो सकता है अगर आपने ब्लड शुगर लेवल्स को, जैसे सिंपली हम बोला जैसे जैसे हमने बना था चाशनी जैसे चिपक जाती हैं तो हमारी बॉडी में भी वायर्स चिपक जाती हैं, तो एक शॉर्ट सर्किट होने का चांस है। स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लो इम्यूनिटी, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम स्पेशली 2020 में जब हम सारे ही जो बोलबाला है वो इम्यूनिटी का है। और हाई ब्लड शुगर लेवल्स मीन कि हमारे बॉडी में वायरसेस और बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा रहेगी।
बैक्टीरिया और वायरस, कोई भी एक्सटर्नल चीज अगर हम बात करें या इनफैक्ट कैंसरस सेल्स की बात करें, कोई भी चीज की बात करें, ये हमारे इन शुगर हाई शुगर लेवल जो ब्लड में है, जो सेल्स हैं हमारे वो शुगर कोटेड हैं, वो हमारे सेल्स को उनके ऊपर ब्रीड करता है अगर आप इस तरीके से देखा जाए। सो हमारे पास बॉडी को फाइट करने के लिए हमारे लेवल्स कम रहेंगे। मूविंग अहेड, हम अगर देखें हाइपरटेंशन की हमने बात की और स्ट्रोक की भी बात की, ये तो हमारी सारी फिजिकल चैलेंजेस हैं। सेकेंड एस्पेक्ट जो हम देखते हैं वो है सोशली। जब हम एज अ सोशल एनिमल, बेशक हम आज की डेट में सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, बट सोशली हम देखा जाए अगर हमारे ब्लड शुगर लेवल्स हाई रहते हैं या हम ऑलरेडी डायबिटिक डिक्लेयर्ड हैं, हम देखते हैं हमारी बॉडी के एनर्जी लेवल्स लो रहते हैं, हमारा फिजिकल काम करने का जो एबिलिटी है वो कम होती जाती है, फटीग बहुत ज्यादा हो जाता है, ज्यादा देर खड़े होंगे तो पैर दुखेंगे, तो रात को आप सो नहीं पाएंगे, ज्यादा देर चलेंगे तो घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा, बैक एक शुरू हो जाएगी, आपके पास फिजिकल एनर्जी ही लो रहेगी, बिकॉज जो सिंपल हमने मेटाबॉलिज्म की बात की वो हो ही नहीं पा रहा है, जो हमने खाना खाया है वो सही तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा है और डिपेंडेंसी फील होने लग जाती है। आप अगर वी टॉक ऑफ टाइप 1 एज अ डिपेंडेंट टाइप ऑफ डायबिटीज, जहाँ पे आप हर टाइम खाना खाने से पहले आप मॉनिटर करते हैं कि आपका शुगर लेवल्स क्या है, आपका खाना खाने के बाद क्या है, और आप इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाते हैं। इन टाइप 2 डायबिटिक ऑल्सो जब आप ओवरऑल हम देखें कि जितनी फिजिकल चैलेंजेस अगर आप देखेंगे, आप कभी ना कभी डिपेंडेंट हो ही जाते हैं, आप बाकियों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने मेडिकेशन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। There is also a genetic impact. Now, like the video also shared, especially in the Asia Pacific region, ये जो एक pandemic अगर हम देखें, diabetic as a pandemic also, with the numbers we are equivalent to or even larger than the COVID as such, ये चैलेंज जो है ये यंगर एज ग्रुप में ज्यादा होता जा रहा है, और जैसे जैसे ये यंगर होता जा रहा है ये हमारे रिप्रोडक्टिव ईयर्स के अंदर इम्पैक्ट करने लग जाता है। और एज यंग एडल्ट इन द रिप्रोडक्शन एज, अगर जब उनको ये हिट करता है डायबिटीज या इनहेरिट करते हैं या लाइफस्टाइल की वजह से, देयर इज अ हाई चांस कि हम, इनफैक्ट हाई चांस क्या, देयर इज ऑलमोस्ट 99% चांस कि हम जेनेटिकली अपने आने वाली जनरेशन्स को ये एक गिफ्ट के तरीके से, चाहे चाहते हैं ना चाहते हुए, हम देते जाते हैं। तो इट इज गॉट अ जेनेटिक इम्पैक्ट ऑन आवर future generations. It also shortens the lifespan. We've had the number of deaths that are happening due to diabetes and high sugar levels, and overall उसकी वजह से और भी हमारे organs और challenges जैसे hypertension, stroke और heart problems, ये बहुत सारी challenges और आते हैं, तो obviously reducing the lifespan. There is also a mental aspect to it as well. High blood sugar levels, confusion, anxiety और depression जैसी challenges को लेके आता है। So overall अगर हम देखा जाए, this is huge. अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए ये नंबर बढ़ता जा रहा है। 2017 से 2045 की अगर हम बात, 2017 से 2045 की अगर हम बात करें, इन द कमिंग 15-20 ईयर्स ये नंबर्स डबल होते जा रहे हैं। अगर हम इंडिया जैसी कंट्री की बात करें, इफ यू लुक हियर, इट इज एन 84% इंक्रीज इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग इन द कमिंग ईयर्स। सो वी नीड टू टेक अ ड्रास्टिक स्टेप टुगेदर टू इंश्योर कि हमारी ओवरऑल एज अ कंट्री डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ना बन जाए। इट इज ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग अ डायबिटिक कैपिटल, एंड वी नीड टू इंश्योर कि हम इस ह्यूज पैंडेमिक जो है इसको हम कंट्रोल कर सकें और अपनी लाइफ को और अपने आने वाले जनरेशन्स को एक बेटर लाइफ दे सकें। सो मूविंग अहेड हम बात करते हैं हमारे इस जो हाई ब्लड शुगर लेवल्स हैं इनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। उस मैनेजमेंट को हम एक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कहेंगे, क्योंकि हमने जैसे पहले भी शेयर किया कि ये क्योरेबल नहीं है, मैनेजेबल है। अब इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको ऊपर हम कवर करेंगे, दैट रियली अगर हम अपने चाहें तो हम अपने ब्लड शुगर लेवल्स को, हमारी डिपेंडेंसी ऑन मेडिकेशन को, हमारी ओवरऑल डिटेरियोरेटिंग हेल्थ को हम कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। और आज की डेट में 2020 का स्लोगन कहता है, पहले होता था हेल्थ इज वेल्थ, आज की डेट में हेल्थ इज लाइफ।
अगर हेल्थ है तभी लाइफ है, अगर हेल्थ नहीं है तो लाइफ नहीं है। सो गोइंग विद द करंट सिचुएशन वी नीड टू इंश्योर कि अगर हमने कोविड-19 जैसे लोग सब कह रहे हैं कि काफी लंबे समय तक ये जंग हमारी जारी रहेगी, इसके अंदर एक एनिमी हमारा बहुत बड़ा हो सकता है, वो है हाई ब्लड शुगर लेवल्स। वी नीड टू इंश्योर कि हमारे ब्लड शुगर लेवल्स बिल्कुल नॉर्मल रेंज में रहें ताकि हमारी इम्यूनिटी हाई रहे और हम ऐसे और आने वाले और भी इस तरीके के जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, इनको हम कंट्रोल कर सकें। सो मूविंग टू द वेरी फर्स्ट वन व्हिच इज डाइट मैनेजमेंट। डायबिटीज इज वेरी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद डाइट मैनेजमेंट, क्योंकि जो हम खाते हैं वही हमारे बॉडी में एक्चुअली इंसुलिन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इंसुलिन से कन्वर्ट होकर एनर्जी में बनता है और उसी के मैल फंक्शनिंग की वजह से डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे एक चार्ट हमें दिया हुआ है दैट इज बेसिकली अ चार्ट फॉर समबडी हु इज हैविंग हाई ब्लड शुगर लेवल्स। तो उसके अंदर हम देख रहे हैं कि 3 to 4 servings of fruits. Now, almost a few years back, people had stopped, people were told to stop eating fruits in the case of diabetic. और अब पिछले कुछ सालों से आज हम साइंस में ये मानते हैं कि फ्रूट कैन हेल्प यू एक्चुअली मेंटेन योर ब्लड शुगर लेवल्स टेकन इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड इंश्योरिंग कि आप होल फ्रूट कंज्यूम कर रहे हैं, नॉट फ्रूट जूसेस एज सच। अगर हम फ्रूट की बात करें तो चाहे इवन वो एक बनाना क्यों ना खा रहे हैं आप पूरे दिन के अंदर, या एक चीकू का पीस क्यों ना ले रहे हैं, या एक आम क्यों ना खा रहे हैं, बट देर आर सर्टन फ्रूट्स विच आर वेरी गुड इन कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल्स। दैट कुड बी फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस, पपाया, गुआवा, एप्पल। ये हमें ज्यादा कंज्यूम करने हैं। No harm in consuming the other fruits also which are little high on the sugar content, but we should consume a whole fruit, क्योंकि जब हम पूरा फ्रूट कंज्यूम करते हैं उसमें ऐसे फाइबर कंटेंट हैं जो उस फ्रूटोस शुगर को जल्दी अब्सॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। On the other hand, vegetables is something we should definitely include 4 to 5 servings of vegetables. Preferably, जैसे हमने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, green vegetables. We should not only include potato as one of the major vegetable that is there, because again potato is a vegetable which is high on the ग्लूकोज कंटेंट, उसका GI कंटेंट काफी हाई होता है, स्पेशली अगर हम उसको फ्राई फॉर्म में खा रहे हैं। अगर आप बेक्ड या बॉइल्ड फॉर्म में खा रहे हैं वो फिर भी उसका कंटेंट लो रहता है। सो हमने इंश्योर करना है कि हम 4 से 5 अलग अलग फल और सब्जियां जो हैं जरूर खाएं, 3 से 4 फ्रूट्स के सर्विंग जरूर खाएं, बट हाई ऑन फाइबर। अनदर एस्पेक्ट जो हमें जरूर इंक्लूड करना चाहिए वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। नाउ दिस इज समथिंग जिसके बारे में अवेयरनेस लेवल काफी कम है हमारी, अगर स्पेशली हम इंडियन डाइट की बात करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे बॉडी में लिपिड्स को बेटर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, हमारे लिवर की फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हमारे लिवर मैल फंक्शन करता है या उसके लिपिड लेवल्स हाई होते हैं तो उस समय वो खुद भी ग्लूकोज क्रिएट कर रहा होता है, जैसे हमने शुरू में देखा है। सो इंश्योरिंग कि हमारे जो गुड फैटी एसिड्स हैं वो हमारे डाइट में हो तो वी कैन इंश्योर कि हमारा लिवर फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ऑन दी अदर साइड इफ यू लुक एट इट, वी हैव ग्रेन्स जो हमारे पास होल व्हीट है। वी नीड टू हैव दी हाई फाइबर या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसको हम बोला जाता है। ग्रेन्स के अंदर होल व्हीट ग्रेन्स जो होते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करने में। छिलके वाली दालें जो होती हैं उनका फाइबर कंटेंट ज्यादा रहता है और वो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, शुगर को बाइंड करके एक्सक्रीट करने में भी हेल्प करते हैं। जब हम बात करें मैदे की, ज्यादा हमें गेहूं का यूज, वो भी मोटा थोड़ा आटा पिसा हुआ, मल्टीग्रेन आटे में चने, बाजरा, ज्वार, मकई, रागी, ये बहुत अच्छे आटे हैं जो हैवी ऑन ग्रेन्स एंड हैवी ऑन फाइबर हैं। ये हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में रियली हेल्प कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग 2 or 3 चपातीज जो गेहूं की है, अगर आप 1 या 2 चपाती मल्टीग्रेन खा रहे हैं वो ज्यादा काम करेगी आपके बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में। राइस अनदर वीकनेस जो नॉर्मली लोग कहते हैं जिनके हाई ब्लड शुगर लेवल्स रहते हैं वो दे कैन नॉट लिव विदाउट राइस। आई वुड रेकमेंड मूविंग ऑन टू सेला चावल या ब्राउन राइस।
अगर आपने फिर भी बासमती ही कंज्यूम करना है तो आप उसको प्लीज ड्रेन करके यूज कीजिए, मतलब एक्सेस वाटर में आप उसको बॉईल कीजिए। जब आपको लगे आपकी डिजायरेबल क्वांटिटी पे वो सॉफ्ट हो गए हैं चावल, उसका पानी एक्सेस वाटर को ड्रेन कर। The next and very important aspect of our diet is protein. Now this is a very important aspect of life. It is the building block of our body. We all know that. बट अगर हम इंडियन डाइट की बात करें, और ये स्टडी ऑलमोस्ट 3-4 साल पहले कंडक्ट की गई और उसमें ये निकल के आया कि वन ऑफ द मेजर रीजंस वी स्टार्टेड टू बिकम अ डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, कैंसर केसेस इतने ज्यादा हमारी बॉडी में हमारी कंट्री में बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बच्चों की बात करें, ग्रोथ इज समथिंग विच इज अ चैलेंज, इम्यूनिटी की चैलेंज है। इन सारे कारणों का एक बहुत बड़ा जो कॉज निकल के आया है इज अ लो प्रोटीन डाइट। हमारी प्रोटीन डाइट में ऑलमोस्ट 85% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज नॉट गेटिंग द सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। Our human body requires 1 gram per body weight of protein every day। मतलब कि अगर मेरा एवरेज जो एक आइडियल बॉडी वेट है वो 65 kg है, तो मुझे 65 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए रोजाना अपनी बॉडी को सही मेंटेन करने के लिए, अपने बालों को मेंटेन करने के लिए, स्किन को मेंटेन करने के लिए, अंदर सेल्स को मेंटेन करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए, जो डेड सेल्स हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने के लिए। सो एक प्रोटीन हमारे बॉडी पे बहुत सारे फंक्शंस के लिए काम करता है, इम्यूनिटी के लिए काम करता है, एनर्जी लेवल्स के लिए काम करता है। और एक लो प्रोटीन डाइट अगर हम ले रहे हैं तो हमारी ये सारे चैलेंजेस हमारे बॉडी के अंदर आने के चांसेस बहुत हाई हैं। हेयर फॉल बहुत कॉमन है, स्किन की जल्दी एजिंग होना बहुत कॉमन है, फटीग, हमारी इम्यूनिटी लो होना, वेट जो है एक्सेस होना। मतलब हमारे बॉडी में अगर हम प्रोटीन कम लेंगे तो बॉडी उसी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए, उसी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए फैट को स्टोर करेगा हमारे बॉडी में। सो हम अगर प्रोटीन सफिशिएंट लेंगे तो हमारी बॉडी और फिटर रहेगी और लीनर रहेगी। इनफैक्ट मतलब एक कॉमन थॉट प्रोसेस लगता है कि प्रोटीन तो वो ही लेते हैं जो वेट गेन करना चाहते हैं। इनफैक्ट वेट लॉस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे डाइट में, वो है प्रोटीन। Very important to understand is कि the plant-based protein is the highly digestible and acceptable form of protein of our human body. We are designed to have more of the plant-based protein. Now, if we look at it, प्रोटीन को 3 फॉर्म से पाया जा सकता है: प्लांट, डेयरी which is also an animal source, and the indirect animal source of protein. Ideally, for somebody who is diabetic, we would want to focus on the plant-based protein, not on the dairy-based protein and not on the animal-based protein, because ये दोनों टाइप के जो प्रोटीन होते हैं, चाहे वो डेयरी प्रोटीन की बात करें या एनिमल बेस्ड प्रोटीन की बात करें, इनके अंदर लिपिड कंटेंट बहुत हाई होता है, मतलब फैट कंटेंट साथ में बहुत हाई होता है। दूध में मलाई जैसे होती है या एनिमल प्रोटीन के अंदर भी जो हमारा फैट कंटेंट हाई रहता है, वो हमारी बॉडी के अंदर ओवरऑल अगर देखा जाए जैसे सेल्स की एक लेयरिंग बना देता है। फैट लेवल्स बढ़ेंगे, लिपिड लेवल्स बढ़ेंगे तो मेटाबॉलिज्म ओवरऑल हैम्पर होगा। सो वी शुड कंज्यूम द प्लांट बेस्ड प्रोटीन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें ग्रेन्स की वजह से, वेजिटेबल्स के अंदर से, डिफरेंट फॉर्म से हमें प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन जैसे मैंने बताया 1 ग्राम पर बॉडी वेट हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। कुछ चीजें हैं जो हमें अपनी डाइट में रिड्यूस करनी पड़ेगी, स्पेशली अगर आपके ब्लड शुगर लेवल्स हाई आ रहे हैं। 1 is fat, as we already shared. 2nd is salt, and 3rd is but obvious sugar, which is in the direct glucose format. Sugar in the format of glucose starts getting absorbed by the body in our mouth itself. ये एक 2nd या 3rd क्लास के सिलेबस का एक सिंपल स्टैंजा है जो हमें याद रखना चाहिए। इसीलिए जिसकी ब्लड शुगर लेवल्स एकदम से डिप करती हैं उनको हम ग्लूकोज पिलाते हैं, शुगर खिलाते हैं,
बट वहां पे हम चाहते हैं कि ब्लड शुगर लेवल्स एकदम से बढ़े। बट बाकी जो भी चीजें हम जिसमें शुगर डायरेक्टली कंज्यूम करें, और बेकरी शुगर इनफैक्ट इज और भी वर्स। बेकरी शुगर इन द फॉर्म ऑफ चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, आपके पेस्ट्रीज, केक्स, मिठाइयाँ, ये एक प्रोसेस शुगर बनता जाता है जिसके अंदर हम कह रहे हैं और भी ज्यादा आसान है हमारे बॉडी को उस शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारे ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज को रोटेट होने के लिए। सो वी नीड टू इंश्योर लो शुगर, लो फैट एंड लो सॉल्ट इनटेक इन आवर डाइट। वी नीड टू इंश्योर कि हम लो ऑन सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जैसे मैंने बात की मैदा, बासमती चावल, तला हुआ आलू, ये सारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म्स हैं। सिंपल शुगर एक उसका फॉर्म है। जब हम बात करते हैं जैगरी या गुड़ की या हनी की, ये कॉम्प्लेक्स शुगर का फॉर्म आ जाता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो गए गेहूं, बाजरा, मकई, ये सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं। चावलों में अगर सेला चावल है, ब्राउन राइस है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। हमें छोटे मील साइजेस लेने हैं। नाउ व्हाइल हमारे बॉडी को टाइम लग रहा है उस मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाने के लिए, इंसुलिन को क्रिएट करने के लिए, तो व्हाट वी नीड टू इंश्योर इज कि हमारे बॉडी को थोड़ा थोड़ा मिले और वो रेगुलरली इस चीज को लेता रहे। जब हम लार्ज गैप्स करते हैं तो हमारी बॉडी को ऐसा लगता है कि शायद वो हम उसको खाना नहीं दे रहे हैं, तो वो हमारे जो लिवर है वो भी इंसुलिन पैदा करने लग जाता है। सो वी नीड टू इंश्योर कि हम लंबे गैप्स ना करें, एक टाइमिंग को मेंटेन करें। सो टिपिकली अगर हम बात करें, द फर्स्ट मील ऑफ द डे इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डायबिटीज और ब्लड शुगर लेवल मैनेजमेंट। नेवर स्किप अ ब्रेकफास्ट अगर आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करना चाहते हैं। इट शुड बी द मोस्ट रिचेस्ट फॉर्म ऑफ योर मील्स। सो ब्रेकफास्ट शुड टिपिकली हैपन विद इन 2 hours ऑफ यू गेटिंग अप, और 7 से 8 बजे का टाइम, 7 से 9 बजे का टाइम आइडियल टाइम रहता है ब्रेकफास्ट के लिए। आपने लेट्स से 10 बजे तक भी, अगर आप थोड़ा से लेट राइजर हैं, आपने 10 बजे तक एक गुड ब्रेकफास्ट जरूर करना है, जिसमें टिपिकली जो हम ये प्लेट में देख रहे हैं, कुछ फ्रूट, कुछ वेजिटेबल, कुछ ग्रेन्स, कुछ प्रोटीन आपकी डाइट में होना चाहिए। उसके साथ साथ विद इन 2 hours, 2 to 3 hours गैप में फिर हम एक छोटी मील जरूर लेंगे। सो अगर आपने लेट्स से 9 o'clock ब्रेकफास्ट किया है तो 11, साढ़े 11 बजे आप एक छोटी मील जरूर लीजिए। फिर उसके बाद फिर 1.5 से 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर हम बात कर रहे हैं जब आप लंच लेते हैं। सो हर 2 से 3 घंटे में आप थोड़ा थोड़ा खाइए। डोंट हैव लार्ज फुल मील्स इन वन गो। थोड़ा थोड़ा, थोड़ी थोड़ी देर में will help maintain the metabolism in the body। बॉडी को थोड़ा देंगे, वो थोड़े को कन्वर्ट करेगा एनर्जी के अंदर, और हमारे बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को स्ट्रेन नहीं पड़ेगा ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करने के लिए। ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ब्लड शुगर लेवल मैनेजमेंट डाइट इज कंटेंट ऑफ वाटर। 3 लीटर ऑफ वाटर, 3 लीटर्स ऑफ वाटर, 2 से 3 लीटर पानी हमारी बॉडी की जरूरत है। This water preferably has to be room temperature water. That means ना कि ज्यादा ठंडा, ना कि ज्यादा गर्म। हम ऐसे बात करें ऐसे पानी की जो हमारे, अगर गर्मियों की बात करें तो थोड़ा सा आप उसको रूम टेम्परेचर करने के लिए पहले स्टोर कर लीजिए। कोई बॉटल में स्टोर कर लीजिए, कूलर में स्टोर कर लीजिए, या अगर आप मटके वगैरह में स्टोर करते हैं, नथिंग लाइक इट, बिकॉज अर्थ जो वेयर है वो नेचुरली कूल कर देता है। और विंटर्स में जब हम बात कर रहे हैं जहाँ टेम्परेचर आर वेरी लो, आप थोड़ा सा उसमें वार्म वाटर मिक्स करें। बट एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अबाउट 22 degrees ऑफ वाटर इज द बेस्ट विच द बॉडी यूटिलाइजेस। जितना पानी हम पिएंगे उतना एक्सेस हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स एंड एक्सेस यूरिन के फॉर्म में जो एक्सेस शुगर है वो बॉडी से बाहर निकलेगी। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आगे भी शेयर करूंगी इज रिडक्शन ऑफ वाटर कंटेंट इन दी लेटर इन द इवनिंग। मतलब ये 2 से 3 लीटर पानी हमने डे टाइम में कंज्यूम करना है। जब हम सुबह उठते से लेके शाम तक, सनसेट तक हमें कोशिश कर लेनी चाहिए कि हम 2 से 3 लीटर पानी कंज्यूम कर लें। उसके बाद हम उतना ही पानी पिएं जितना हमारी बॉडी में थर्स्ट लगे। ठीक है, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इज फिजिकल एक्टिविटी एंड स्लीप। नाउ फिजिकल एक्टिविटी हमारे
जो स्टडी कहती है कि 30 मिनट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज अगर आप डेली करते हैं, आप डायबिटिक होने का चांस 40% तक रिड्यूस कर लेते हैं और 40% तक आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन कर सकते हैं बाय जस्ट डूइंग 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज कुछ भी हो सकती है, वो कोई स्पोर्ट्स हो सकता है, वो योगा हो सकती है, स्किपिंग हो सकती है, कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं आप। आज की सिचुएशन में तो हम यही कहेंगे कि घर बैठे बैठे आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी वीडियोस ऑनलाइन जो आप देख सकते हैं ऑन exercises that you like. You could dance your way for 30 minutes, you could do yoga, you could do Zumba, you could skip, you could walk stairs, कुछ भी आप कर सकते हैं, but 30 minutes of physical exercise बहुत ज़रूरी है। It is very important कि physical exercise आप regularly करेंगे तो you will have a good sleep. 7 hours of sleep is a very important point because इसमें हमारी बॉडी रिपेयर करती है अपने आप को। तो जो डैमेज हुआ है या आज तक हो रखा है, बाय मेंटेनिंग अ 7 hours ऑफ स्लीप हम इंश्योर कर सकते हैं हमारी बॉडी खुद को रिपेयर करे। जैसे मैंने पहले मेंशन किया, वी शुड अवॉइड हैविंग वाटर पोस्ट 7 PM। इसकी वजह से आप ये देखेंगे कि रात की नींद आपकी और बेटर होती जाएगी। आप पानी कम कंज्यूम करेंगे तो आप रात को उठेंगे भी कम, बार बार वॉशरूम जाने की दिक्कत नहीं रहेगी। There is a very important aspect of a 30-minute gap between eating your food and lying down. Now, especially जब हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन्स की या जिनको कोई ना कोई ऑलरेडी लाइफस्टाइल चैलेंजेस हो रहे हैं, उनको ये चैलेंज होता है कि खाना खाते ही उनके ब्लड शुगर लेवल्स एकदम से जंप करते हैं और उस समय उनको ऐसा दिल करता है कि मैं बस एकदम से लेट जाऊं, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो। वी नीड टू इंश्योर कि हम ये 30 मिनट्स को शुरू में 10 मिनट 15 मिनट ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज करें, बट आपने फिजिकली और एक्टिव होना है अपने खाना खाने के बाद। सो एक्सरसाइज नहीं करनी है, यू कुड बी स्टैंडिंग, यू कुड बी वॉकिंग अराउंड, यू कुड डू और कुछ नहीं तो यू कैन बी सिटिंग इन अ चेयर बट नॉट लाइंग डाउन, बिकॉज इस प्रोसेस की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म जो रेट है वो स्लो डाउन होता है और बॉडी इंसुलिन कम प्रोड्यूस कर पाती है। जब हम चलते फिरते रहते हैं, थोड़ा आप किचन में हेल्प कीजिए, अगर आप खुद किचन में खाना बनाया है, खाना खाया है, बर्तन वगैरह संभालिए, कुछ फिजिकल एक्टिविटी कीजिए और कुछ नहीं तो थोड़ा सा वॉक अराउंड दी हाउस दैट इज देयर, बट इंश्योर कि आप अपना जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बढ़ा के रखें, स्पेशली खाना खाने के 15 मिनट से 30 मिनट के बीच के रेंज में। सो दिस इज ऑन द फिजिकल एक्टिविटी एंड स्लीप। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज माइंड। हमारा जो माइंड है इट इज नोन एज माइंड ओवर बॉडी। आज हम साइंस में इस चीज को एब्सोल्युटली एग्री कर चुके हैं कि हमारा जो माइंड है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। आज की डेट में अगर आप मेंटली फिट नहीं हैं तो फिजिकली भी फिट नहीं रह पाएंगे। फिजिकली फिट है और अनफिट है बट मेंटली फिट है तो आपकी बॉडी अपने आप को रिपेयर करके फिजिकली भी फिट हो सकती है। सो वी नीड टू इंश्योर कि हम मेंटली खुश रहें, मेंटली फिट रहें। यहाँ कुछ छोटी सी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की। ऑब्वियसली ये छोटा सा प्रोग्राम इज टू शॉर्ट फॉर अस टू टॉक अबाउट stress management in depth, but meditation, being happy, building a hobby, relaxing, ये stress busters हैं। इस टाइम पे ऑफ कोविड-19 स्ट्रेस लेवल्स काफी लोगों के बढ़ गए हैं, जबकि एक्चुअली घटने चाहिए। फिजिकल ट्रैवल नहीं हो रहा है, आपके वर्कलोड्स ऑफिस में कम हो चुके हैं, आप अपनी फैमिली के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, घर का खाना खा रहे हैं, टाइमिंग्स आप बेटर मेंटेन कर सकते हैं आपके बॉडी की, तो आप वाकई कॉन्शियसली अपने स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस कर सकते हैं। स्ट्रेस इज अ मेजर रीजन फॉर हाई ब्लड शुगर लेवल्स। जब हमारा ब्रेन स्ट्रेस में होता है, उदास होता है, टेंशन में होता है, तो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स एकदम से बढ़ जाते हैं। तो हमें इंश्योर करना है कि हम खुश रहें। Moving ahead is the aspect of medication and monitoring. Now I would highly recommend कि जो भी आपकी मेडिकेशन है, जो आपको ऑलरेडी आपके जो डॉक्टर ने आपको रेकमेंड की है, या अभी तक अगर आप मेडिकेशन नहीं ले रहे थे और आपके ब्लड शुगर लेवल्स हाई जा रहे हैं, तो यू नीड टू मीट अ एंडोक्रोनोलॉजिस्ट, जो आपको एक जनरल फिजिशियन आपसे मिलिए और वो आपको हेल्प करेगी कुछ मेडिकेशन लेने के लिए।
स्पेशली अगर हम बात करें HbA1c लेवल आपका अगर 7 से ज्यादा आ रहा है या ब्लड शुगर फास्टिंग आपकी 150-200 से ऊपर आ रही है, तो यू नीड टू गेट ऑन टू सम मेडिकेशन ऑल्सो। लाइफस्टाइल चेंजेस आपको हेल्प करेंगी इन शुगर लेवल्स को मेंटेन करने के लिए, बट सम मेडिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ब्लड शुगर लेवल्स को अपने मेंटेन करने में सक्सेसफुल रह रहे हैं लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की वजह से, स्टिल जो भी आपकी मेडिकेशन है आप उसको कंटिन्यू रखें, एंड ओनली आफ्टर गिविंग अ हिस्ट्री ऑफ योर ब्लड शुगर लेवल मॉनिटरिंग आप अपने प्रैक्टिशनर से, अपने डॉक्टर से अपने मेडिकेशन को मॉडिफाई करा सकते हैं। प्लीज डू नॉट डील इन सेल्फ मॉडिफिकेशन ऑफ योर डायबिटिक मैनेजमेंट जो मॉनिटरिंग मेडिसिन हैं बिल्कुल भी। साथ में मॉनिटरिंग हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, रेगुलरली मॉनिटर कीजिए। अबव द एज ऑफ 35 एटलीस्ट वंस एनुअली, अबव द एज ऑफ 40 वंस इन एवरी 6 months, आफ्टर द एज ऑफ 45 इट शुड बी अ क्वार्टरली अफेयर। एटलीस्ट आप आपका ब्लड शुगर फास्टिंग, रैंडम ब्लड शुगर, HbA1c इनमें से कोई भी एक आधा ब्लड शुगर मॉनिटरिंग जरूर रेगुलरली करें। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल्स ऑलरेडी हाई रहने लग गए हैं और आप डायबिटिक डिक्लेयर्ड हैं, प्लीज मेक दिस अ वेरी रेगुलर अफेयर इन योर लाइफ ऑफ मॉनिटरिंग कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स क्या हैं। जब आप कोई पार्टी में जाते हैं या कुछ चीट डे मेंटेन करते हैं, इंश्योर कीजिए कि आप अगले दिन जरूर चेक करें कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स कितने हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द सप्लीमेंटेशन पार्ट। नाउ हमने देखा कि हमें डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ब्लड शुगर लेवल मैनेजमेंट में, बट हमारा आज की डेट में एक चैलेंज और है कि जो हम खाना खा रहे हैं उसकी क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी में एक क्वेश्चन मार्क आ गया है। क्या हम वो डिजायर्ड क्वालिटी पा रहे हैं हमारी फलों की, सब्जियों की, ग्रेन्स की? क्या हम उतनी क्वांटिटी कंज्यूम कर पा रहे हैं, चाहे वो प्रोटीन की बात करें, हम विटामिन की बात करें, मिनरल्स की या फैटी एसिड्स की बात करें? वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जैसे हमने बहुत सारी चीजों को लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया है, जैसे डिजिटलाइजेशन को इस कोविड ने वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्टेंस दे दी है कि हम अगर बात करें पीपल दैट हैड नॉट येट एक्सेप्टेड डिजिटलाइजेशन, दे हैव बीन फोर्स्ड टू। हमने मोबाइल फोन्स कुछ साल पहले, 15-20 साल पहले बाय चॉइस एक्सेप्ट किए थे हमारी लाइफ में। आज की डेट में ये पार्ट एंड पार्सल हो चुका है लाइफ के। इसी तरीके से हमारी डाइट में कुछ गैप्स रह जाते हैं जिनके लिए हमें सप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। मेकिंग अ राइट चॉइस ऑफ माई सप्लीमेंटेशन प्रोवाइडर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंश्योर कीजिए कि जो आपका प्रोवाइडर है वो आपको सेफ सप्लीमेंटेशन दे रहा है। ये नहीं है कि आप अपनी बॉडी को एक चीज को ठीक करने के लिए दूसरा डैमेज कर रहे हैं। दूसरी चीज है प्लांट बेस्ड सप्लीमेंटेशन हमारी बॉडी सबसे ज्यादा बेटर अब्सॉर्ब करती है। सो कंज्यूमिंग सप्लीमेंट्स विच आर प्लांट बेस्ड हमारी बॉडी की अब्सॉर्प्शन ज्यादा होगी, तो हम अपनी बॉडी को स्ट्रेन कम से कम देंगे। Now let's understand किन किन चीजों की सप्लीमेंटेशन डायबिटीज मैनेजमेंट में या हाई ब्लड शुगर मैनेजमेंट में हमें हेल्प करेगी। तो जैसे हमने डाइट में देखा था फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिनसे हमें विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। अगर हम वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इन द क्वांटिटी एज डिजायर्ड, और क्वालिटी तो हमारे पास है ही नहीं, बिकॉज अगर हम वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करें वो 15 से 16 घंटे आफ्टर द फ्रूट इज बीइंग प्लक्ड। जैसे हम विटामिन सी की आज बोलबाला बहुत ज्यादा है, वो हमें इम्यूनिटी देता है, बट अगर विटामिन सी की बात करें वो 15 से 16 घंटे में, अगर हम एक ऑरेंज की बात करें या एक लेमन की बात करें, उसका विटामिन सी कंटेंट रिड्यूस होने लगता है जितना ज्यादा उसको हवा, धूप या पानी का एक्सपोजर मिलता जाएगा। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि जब तक सब्जियां हमारे पास पहुंच रही हैं वो बहुत बहुत दिन हो जाते हैं, बहुत बहुत हफ्ते हो जाते हैं अगर हम कोल्ड स्टोरेजेस की बात करें जहां से सब्जियां आ रही हैं। फर्दर मोर हम उनको धो रहे हैं, पका रहे हैं, तो उनकी ऑटोमेटिकली जो विटामिन मिनरल कंटेंट है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। सो कंज्यूमिंग अ फूड सप्लीमेंट इन द फॉर्म ऑफ अ मल्टीविटामिन बिकम्स अ नेसेसिटी, स्पेशली अपने ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करने के लिए, इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए। सो अ multivitamin I shown here, the one that I consume is by Nutrilite called Daily. It gives me 24 vitamins and minerals all together in one tablet. Plant source से है,
एंड इट इज सेफ, उसके अंदर कोई प्रेजर्वेटिव्स या आर्टिफिशियल कलर्स या फ्लेवर्स नहीं डले हुए हैं, तो इट इज एब्सोल्युटली नेचुरल और मेरी डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन मिनरल्स वो पूरा करता है। फर्दर ऑन हमने जैसे देखा ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे लिवर हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ओमेगा 3 हमारे इंडियन डाइट में वाकई ही बहुत कम है और इसमें हमारे पास बहुत कम और ऑप्शंस हैं देन सब्स्टिट्यूशन। What I personally use is the Nutrilite Omega 3 which is salmon omega से sourced है, salmon fish oil है। Even if there is anybody who is a vegetarian by choice, वो omega 3 oil use कर सकता है। It is still better than consuming direct fish oil। ये आप in the form of a capsule consume कर रहे हैं और इसके लिए हमने उस जो फिश है उसको मारा नहीं है, उससे ये एक्सट्रैक्ट किया गया है। सो इफेक्टिवली वी आर टॉकिंग अबाउट a very rich form of omega 3 which has got the EHA and DHA to ensure कि हमारे लिपिड लेवल्स कंट्रोल रहे हैं, मेटाबॉलिज्म अच्छी तरीके से काम करे, हार्मोन्स हमारे बॉडी में मेंटेन रहे। डिसबैलेंस हार्मोन्स की वजह से भी हाई ब्लड शुगर लेवल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो थायराइड लेवल्स के साथ साथ आपके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ द हार्मोनल डिसबैलेंस। मूविंग ऑन, जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो हमारे पास ऑल प्लांट प्रोटीन है बाय न्यूट्रीलाइट। 1 scoop of protein powder gives me 8 grams of pure dietary plant based protein which has got zero cholesterol, zero sugar content in it। मार्केट के अंदर मोस्ट प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैव एक्सेस शुगर एडेड टू इट, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट एडेड टू इट, लीडिंग टू एक्सेस कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ऑल्सो। यहाँ पे एक ऐसा प्लांट बेस्ड प्रोटीन है विच इज प्योर प्रोटीन, इसके अंदर आपके कोई भी एक्सेस शुगर कार्बोहाइड्रेट नहीं ऐड किया हुआ है, आपको कंज्यूम करना इजी है। इफ यू आर नॉट अ मिल्क ड्रिंकर लाइक आई एम, आई ऑल्सो डोंट एंजॉय कंज्यूमिंग मिल्क एज सच, बट हियर इज प्रोटीन पाउडर विच इज टेस्टलेस, फ्लेवरलेस बाय न्यूट्रीलाइट। मैं उसको अपने आटे में ऐड कर देती हूँ, अपने बेसन के अंदर ऐड करके चीला कर लेती हूँ, मैंगो शेक्स में ऐड कर लेती हूँ, कॉफी शेक्स में ऐड कर लेती हूँ, किसी भी चीज में, सॉल्टी, मीठा, ठंडा, गरम, किसी भी फॉर्म में आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं और पूरी बॉडी की पूरी फैमिली के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंटेशन बन जाता है। न्यूट्रीलाइट फाइबर इज अ गुड सप्लीमेंट। अगर आपका फाइबर का जो इनटेक है वो कम है और ड्यू टू प्रॉब्ली अदर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आपको फाइबर कंटेंट कम कंज्यूम करना है, तो ये एक डिसॉल्वेबल सॉल्युबल फाइबर का फॉर्म है जो आप इजीली कंज्यूम कर सकते हैं और अपनी डाइटरी फाइबर के जो गैप को उसको पूरा करने में हेल्प कर सकते हैं। तो दीज आर सर्टेन फूड सप्लीमेंट जो अपनी डाइट में हम ऐड कर सकते हैं अपने बेटर ब्लड शुगर लेवल्स मैनेज करने के लिए। Now there is also one more aspect जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी, that is herbals। Now what are herbs? Herbs एक बहुत important aspect है हमारे खाने के जो पूरा सिस्टम है, but they are not actually food। ये वो चीजें हैं जो हमें नेचर ने दी हैं अपने बॉडी को करेक्ट करने के लिए, ये हमें बॉडी को बूस्ट करने के लिए दी हैं। तो जैसे बॉडी को चलाने के लिए हमें खाना चाहिए, वैसे ही बॉडी सिस्टम्स को मेंटेन करने के लिए हम इन हर्ब्स का यूज कर सकते हैं। और इंडियन ट्रेडिशनल हर्ब्स जो हैं वो ऑल्सो कम बैक विद अ ह्यूज हिस्ट्री ऑफ 5000 ईयर्स। 5000 सालों से हमारे जो ऋषि मुनि हैं, वो वेद्स हैं, वो इस चीज को डिक्लेयर करते हैं कि हम अपनी ह्यूमन बॉडी को ठीक रख सकते हैं, मेटाबॉलिज्म रेट्स, हमारे सिस्टम्स को ठीक रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज हर्ब्स। ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करने के लिए भी कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो नेचर ने हमें दिए हैं। आई वुड वांट टू टॉक अबाउट अ फ्यू ऑफ देम। What I personally recommend is by Nutrilite. There are 2 herbs that we are talking about here, herb combinations. One is called आंवला की, विबिटा की, हरिटा की। ये 3 फलों का मिश्रण है। ये हमें त्रिफला के फॉर्म में भी हो सकता है, आप इसको कह सकते हैं। ये हमारे पूरा जो डाइजेशन सिस्टम है, हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, इसको रेगुलेट करने में इंश्योर करता है। ये इंश्योर करता है कि जो एक्सेस शुगर है हमारे बॉडी में वो बॉडी से बाहर निकले। कॉमन सिम्टम विद हाई ब्लड शुगर लेवल, स्पेशली प्रोलॉन्ग डायबिटीज के अंदर कॉन्स्टिपेशन जैसी, इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स ही होती हैं।
कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जिनकी वजह से डाइजेशन रिलेटेड चैलेंजेस आते हैं. बाय कंज्यूमिंग हर्ब कॉल्ड AVH या आंवला की विबिटा की हरिटा की, हम अपनी डाइजेशन सिस्टम को सपोर्ट कर सकते हैं और उसको बेटर मैनेज कर सकते हैं, और हमारे ब्लड शुगर लेवल्स जो एक्सेस है उनको एक्सक्रीट करने में ये हर्ब हमें हेल्प कर सकता है. On the other hand, we have a very specifically designed blood sugar managing herb combination which is called Madhunashni with Sunti and Takht. ये तीनों ऐसे हर्ब्स हैं जो मदर नेचर ने हमें दिए हैं, जो वाकई ही हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं. द वेरी फर्स्ट वन बाय द नेम मधुनाशनी मीन्स कि वो हमारे बॉडी के अंदर जो एक्सेस शुगर है उसको वो मारता है. मधुनाशनी उसको खत्म करता है और वो इंश्योर करता है कि हमारी कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग कम हो, वो हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है. सुंटी विच इज ऑल्सो नोन एज ड्राई जिंजर हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और लिवर की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है. तख्त इज ऑल्सो अ वेरी गुड हर्ब जो इंश्योर कर सकता है कि हमारे जो ब्लड शुगर लेवल्स इवन इन दी नॉर्मल रेंज, जिनका आज डायबिटीज नहीं है, हाई शुगर लेवल्स नहीं है, वो भी ये दोनों हर्ब्स कंज्यूम कर सकते हैं बेझिझक. 1 tablet a day is what the requirement would be in that case. एक प्रिवेंटिव वे में भी कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में भी आपकी लाइफस्टाइल की वजह से या इनहेरिटेंस की वजह से आपके ब्लड शुगर लेवल्स हाई ना जाएं. सो कमिंग टू एंड ऑफ द सेशन, हमने देखा कि हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऑफ ब्लड शुगर लेवल मैनेजमेंट देखा, बट हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी का डाइट रिक्वायरमेंट अलग है, हर किसी के ब्लड शुगर लेवल्स अलग हैं. सो आई एम हियर विद शेयरिंग माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स. आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम 1-on-1 डिस्कस कर सकते हैं. आई एज ए न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइजर आई कुड हेल्प यू फॉर्मुलेट अ डाइट प्लान जो आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प कर सकता है, और आगे वाले टाइम में फ्यूचर में भी ऐसी चैलेंजेस आपके लाइफ में ना आए, आप एक प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल मैनेज भी कर सकते हैं टू इंश्योर कि हम इन डिफिकल्ट सिचुएशन जहां हेल्थ इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी, उसका एक बहुत बड़ा जो सेंट्रल पिलर है हमारा ब्लड शुगर लेवल्स, उसको हम स्ट्रेंथन कर सकें. तो थैंक यू सो मच एंड बी इन टच.